गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, संडे मॉर्निंग। हियर इज राजीव। देख सकते हैं सुबह सुबह हम लोग निकल गए बाहर, कुछ काम है इसीलिए। इट्स नॉट इवन 8। ब्रांड से हाय। वो कंडीशन में नहीं है हाय बोलने की। Almost very sleepy. Yeah, just like school days, you have to wake up early. Sunday morning. But Sunday वाला कोई फंडे नहीं चल रहा है। No traffic. Roads are empty. ये हम दुबई से शारजा की तरफ आ गए हैं और हम आपको लेके जा रहे हैं अल हिरा बीच, अ ब्यूटीफुल बीच। वो न्यूली बना है, तो चलिए चलते और एंजॉय करते हैं। After dropping Ryan, Rimi wanted to have tea, so I brought her here. Here, actually, this is Sharjah New Beach. You can see it's very nice. Actually, the beach, you can see the color of sand. It's like painted white. This part, the beach is little different, and the sand is different. The same way, actually, Dubai Jumeirah also it is very nice, and they made it similar like Jumeirah. Jumeirah it is close by us, so most of the time we visit Jumeirah only. Here Sharjah we didn't get chance to come. This is the Philly. You have to walk in this area. Today we got almost 1.5 hours time, so I told her, come, let us go to the beach. We'll have some time, we can sit and have our tea. This is the beach area. You have plenty of parking in this area. This is a paid parking. They are charging, I think, 10 dirhams for 1 hour. So it's a long parking. Hundreds of cars can be parked here. And whenever I came, I saw these parkings are always empty. So it's very easy to park, and you can spend time with family. It's not very far also. Only the problem is you have to select the time when the traffic is less. That also from Google Earth you can just find out. Google Map you can find out when the traffic is less. Like today we came Sunday morning, really the road, everything was very clear and traffic was very less. Remy is coming. See you. Actually, she was tired also, but it's okay. She can walk for tea. This is the area where the shops are there, 3-4 shops. This is the Philly, our destination. We'll enter now. I don't know it is open or no. 8:30 they are supposed to open. Still now it is 8:20. So maybe another 10-15 minutes they will open. मैंने जानबूझ के ये फुटेज लंबा ही रखा है क्योंकि इट इज़ मेस्मराइजिंग। मुझे बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत लगा है। अगर कैमरे का मूवमेंट नहीं है तो ऐसा लग रहा है कोई पेंटिंग है। स्पॉटलेस ब्यूटी, इतनी खूबसूरत कि गर्मी में भी हम लोग काफ़ी देर तक थे। और ये तो हमारी बन गई संडे वाली डेट मॉर्निंग। प्यारी सी छोटी सी चाय के साथ अच्छा शुरुआत हुआ था संडे मॉर्निंग की। So they made these shades so people can come, and there is restrooms, restaurants, cafe. Tim Hortons is there beside this. We wanted to have tea, that's why we came to Philly. Evening time, I think this places lot of people are coming, and now because of summer it is less, but winters it will be full, it seems. We also, most of the time in winter we go morning, whenever we wake up little early, we prefer to go out to some places like this. See the beach, it looks very clean. The sand is white. Far you can
can see one ship. 20 minutes. Actually, day it is not visible. In that line, lot of ships used to stand. They are coming to different ports, like Sharjah port is there. After a long time, we are coming this side. The beach looks so clean Ajman and beach, clear. this is the new look of Very less Ajman people. beach. Actually, a lot of activities people can do here. There is cycle track, Very good. walking, actually, if you running track, jogging track. compare with other People do beaches. water sports also. Ajman beach. Maybe because of summer Yeah, people are before it less, was but simple winter beach, they it did will be full. construct the walkway, People come with pathways water and scooters. everything. Now you can see They the swim. thing. Families come near the sea. Really very good. आ गई सुबह की तसल्ली वाली चाय। आज है ज़ाफ़रान चाय। दे मेक वेरी गुड। हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो आई एम बैक विथ माय संडे ग्रोसरी हॉल। सबसे पहले प्रॉन्स लेके आए हैं, तो हम लोग ऐसे ही थर्मल बैग्स में लेके आते हैं, आइस एक्स्ट्रा आइस डाल के। तो मैं वो डाल देती हूँ फ्रिज में। दो ट्रे, सो 1 kg का है, 2 kgs। फ्रेश, क्लीन एंड डी विंड। यहाँ पे है ब्राउन ब्रेड, इंडियन ग्रीन चिली, दिस इज 8 dirhams a kg। देन भिंडी 10 dirhams a kg। कीवी ये है न्यूजीलैंड से 23 dirhams a kg। रिच गोड 10 dirhams a kg। क्यूकम्बर 3 dirhams a kg। करेला बिटर गोड 10 dirhams a kg। ये है वाटरमेलन, काफ़ी ह्यूज सा ही है। इट इज़ समथिंग अराउंड 2.7 kgs का है ये। 7 dirhams we paid। 2 dirhams 50 fils per kg it was। And pumpkin, this is 3 dirhams a kg। We have taken a very small size, 600 grams only। Orange, ये पता नहीं, स्टिकर लगा हुआ नहीं है, so I don't know the price। इडली डोसा बैटर, this comes around 5-6 dirhams a kg। साबुत धनिया 5 dirhams का पैक है ये राइस फ्लावर, राइस पाउडर 500 grams। This was also around 5 dirhams, 4-5 dirhams something। Ginger garlic paste, I don't remember the price। Then ये एक मैं लेके आई हूँ, फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी, मल्टीपर्पज क्लीनर। मैंने देखा है जो मल्टीपर्पज क्लीनर्स होते हैं ना, आई हैव नॉट यूज मच वेरिएशन, बट द ग्लास क्लीनर वर्क्स फॉर एनी सरफेस वेरी गुड। जहाँ पे आपको डिग्रीज करना है दैट्स डिफरेंट, बट जस्ट सिंपल क्लीनिंग के लिए glass cleaners are perfect, but I just wanted to try, so I got a different one। Protein bar, sugar free protein bar। Dark chocolate, ये कुछ न्यू टाइप का बिस्किट, ये तो रायन का स्टेपल है, ये रायन के लिए पीनट बटर वाला बिस्किट। लेट हिम ट्राई दिस। हाँ, लास्ट वन एक शावर हेड, रायन का वॉशरूम का शावर हेड टूट गया था, so that's it। I don't know, this one is not that great of a quality, but we paid 32 dirhams। I don't know for what। Okay, बस मैं सब फ्रिज में रख देती हूँ और फिर मैं शाम को मिलती हूँ, देखती हूँ डिनर में क्या बनाऊंगी। आज सुबह 8 बजे से पहले निकली थी। नाउ इज 3:05। I don't know आप लोग को दिख रहा होगा कि नहीं, 3:05। Totally tired and exhausted। सुबह 8 बजे से पहले निकल गए थे और आफ्टर 3 घर आए थे, तो काफ़ी टायर्ड हो गई थी, तो मैं दोपहर को सो गई थी। उसके बाद अभी मैं सीधा किचन में आई हूँ डिनर बनाने के लिए। डिनर में बना रही हूँ मैं शक्शोका, एक मिडल ईस्टर्न नॉर्थ अफ्रीकन डिश, पर ये फर्स्ट टाइम मैंने नॉर्थ अफ्रीका अल्जीरिया में ही खाई थी। 3 years के लिए हम लोग अल्जीरिया में थे। 2011 में वी मूव्ड टू अल्जीरिया।
shakshuka, this dish, first time I had it in Algeria. It's a very common dish in Middle East and in North Africa. बट मिडिल ईस्ट में मैंने रह के कभी ना नाम सुना था ना ही मैंने खाया था. बस जब जैसे मैं अल्जीरिया में गई, इट्स अ वेरी पॉपुलर डिश, रेस्टोरेंट्स में भी मिलता है. मैंने फर्स्ट टाइम रेस्टोरेंट में ट्राई की थी. वहाँ पे चिकन नहीं सॉरी मीट बॉल्स ऐड करते, बट दैट वाज काइंड ऑफ रिस्की. अल्जीरिया में द मेन लैंग्वेज इज अरबिक एंड द अदर लैंग्वेज दे स्पीक इज फ्रेंच. वहाँ पे इंग्लिश इज ऑफ नो यूज. वहाँ इंग्लिश किसी को समझ में नहीं आता, डॉक्टर्स को भी नहीं. तो इसीलिए हम लोग हमेशा बिना मीट वाला ही ट्राई करते थे, बिकॉज वी डोंट नो वो मीट कौन सा मीट होगा. बाकी का डिश इज द सेम. वी नीड चॉप्ड अनियन, कोई भी बेल पेपर्स, आप ग्रीन भी ले सकते हो, कलर्ड भी. मेरे पास कलर्ड पड़े हुए थे, ऑरेंज और येलो, मैंने वही यूज किया. और ढेर सारा टमेटो. और स्पाइसेस में जीरा पाउडर, हल्दी, पेपरिका या कश्मीरी रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, और थोड़ा सा लास्ट में आप यूज कर सकते हो कोरिएंडर लीव्स. ओ मेन डिश, मेन तो चाहिए एग. तो चलिए बनाते. इट्स एन इजी फास्ट एक रेसिपी है. यूजुअली इसको ब्रेकफास्ट डिश के नाम से जाना जाता है, पर अल्जीरिया में ये रेस्टोरेंट्स में ब्रेकफास्ट लंच डिनर का भी मिलता है. एक इंग्रेडिएंट मैं खुद डालना भी भूल गई, बोलना भी भूल गई. अभी वॉइस ओवर के टाइम आई नोटिस्ड कि वी हैव टू यूज मिंच्ड गार्लिक. और इधर और बन गई है मेरी स्टीम्ड ब्रोकली. नहीं, आज मैंने पतीला नहीं जलाया, हमेशा नहीं जलाती हूँ. शक्शोका बनाने के लिए थोड़ा सा फ्लैट और बड़ा वाला यूटेंसिल चाहिए. क्यों चाहिए आप आगे जब रेसिपी देखोगे यू कैन अंडरस्टैंड. भाई जब पूरी बनाई थी, अब उसी का तेल थोड़ा थोड़ा करके सब्जी में यूज़ करूँगी. अब जल्दी ख़त्म नहीं होगा तो आई हैव टू थ्रो इट. अल्जीरिया में हम जिस सिटी में थे वहाँ पे ना स्नोफॉल होती थी विंटर में, एंड द सिटी यूज्ड टू बिकम सो ब्यूटीफुल. वेजिटेबल्स को ना मशी सा नहीं बनाना है. इस रेसिपी में ना कैंड टमेटोज भी बहुत अच्छे से यूज होता है. आप चाहो तो थोड़े इंडियन वर्जन में ग्रीन चिली डाल सकते हो, तो मैं नहीं डाल रही हूँ. ढेर सारा टमेटो. चलिए थोड़ा और भी डाल सकते हो टमेटो. टमेटो ही इसका मेन बेस होता है. वहाँ पे एक और अच्छी बात थी, वहाँ पे हाउस हेल्प मिलती थी विथ वेरी अफोर्डेबल प्राइस और पूरा अच्छे से काम करके देती थी. मेरी जो हाउस हेल्प थी ना, उसी ने मुझे पिज़्ज़ा बनाना सिखाया था ओवन में. वो चॉपिंग करके देती थी, वॉशिंग मशीन में कपड़े धो के वो डाल के देती थी. कुछ भी एनीथिंग वो आपके घर में, मेरे घर में तो वो 3-4 घंटे के लिए आती थी, सारा काम करके देती थी. क्या दिन थे. वहाँ पे मॉल्स वगैरह नहीं थे जिस सिटी में हम गए थे. बाद में मॉल्स बन गया है, पर ड्यूरिंग दैट टाइम 2011, 12, 13, बट कुछ हर जगह पे कुछ डिसएडवांटेज कुछ एडवांटेजेस होती. एज ए होम मेकर हाउस हेल्प की बड़ी हेल्प मिलती थी मुझे. अल्जीस जो कैपिटल है अल्जीरिया की, वहाँ पे तो राइस इजीली मिल जाती थी, पर हम जो छोटे वाली सिटी में थे वहाँ उतना इजी अवेलेबल नहीं होता था गुड क्वालिटी राइस, क्योंकि वहाँ का मेन फूड इज़ नॉट राइस, इट्स ब्रेड. वो इसीलिए जब भी मुझे इंडिया गेट राइस मिलता था, मेरे पास जितने भी पैसे होते थे मैं उठा लेती थी, क्योंकि 2011 में वहाँ पे सिर्फ कैश डीलिंग ही होती थी. देयर वॉज नो कार्ड सिस्टम. अल्जीरियंस लव बॉलीवुड मूवीज़. कहीं पे जाओ, किसी से भी मिलो, उनको लैंग्वेज में तो कम्युनिकेट करना नहीं आता था, पर ज़रूर पूछता था, डू यू नो अमिताभ बच्चन, डू यू नो शाहरुख खान. अभी थोड़ा सा मैंने हल्दी, अब पेपरिका और क्यूमिन पाउडर डाल दूँगी. पेपरिका का नहीं है तो कश्मीरी रेड चिली डाल देना, या कोई भी चिली. वो तीनों ड्राई पाउडर मसाला दीजिए, थोड़ी देर वो जीरा को थोड़ा भून लीजिए, एंड दैट्स इट डन. अब
एग्स डालना है। एग्स डालने से पहले ना आपको वेजिटेबल्स के अंदर जितना भी एग्स डालना उसका छोटा छोटा पॉकेट्स बना लेना है। मैंने वो रिकॉर्ड किया है, आप देख लीजिए। हर एक पॉकेट में एक एग को क्रैक करके डाल देंगे और वेजिटेबल्स को इस तरह प्लेस करेंगे दैट इट एक्ट्स एज ए बाउंड्री और पूरा मिक्सअप जैसा ना हो जाए पूरा एग। हम लोग अल्जीरिया गए थे बिकॉज फ्रॉम द सेम कंपनी माई हस्बैंड वॉज ट्रांसफर्ड। वहाँ पे एक प्रोजेक्ट था, उस बेसिस पे हम लोग गए थे। काफ़ी नया एक्सपीरियंस हुआ था क्योंकि मैं ऐसे कंट्री में रही नहीं हूँ जहाँ पे इंग्लिश समझ में नहीं आता है। इट वॉज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। अल्जीरिया में तो ट्रेडिशनली देयर टू नॉट पुट। राजीव को पसंद है इसलिए मैं डाल दूंगी 2 एग्स में। रान को बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी इसको एकदम लो हीट पे ढक के जब तक एग कुक नहीं होता इसको पकाना है, एकदम लो हीट पे। चलिए खोलते हैं और देखते हैं। देखिए, हाँ, मुझे थोड़ा एग योग जो है ना वो सॉलिड हो जाए वही अच्छा लगता है। अगर आप चाहो तो रानी स्टेज में भी निकाल सकते हो, मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है। इसको ना प्लेटिंग करने की कोशिश मत करो, सीधा जिसको देना है ऐसे फ्लैट वाले कर्ची से लो एंड सर्व इट। अल्जीरिया में तो वो लोग साथ में ही खाते हैं, तो एक्चुअली ऐसा बड़ा वाला बोल देते हैं डाइनिंग टेबल में सेंटर में और सब एक साथ खाते हैं। दैट इज द कल्चर। Arabs all they have this kind of culture कि मेन डिश सेंटर पे होता है। और अल्जीरिया में they have their main carb is like bread। वो लॉन्ग ब्रेड जो फ्रेंच ब्रेड होता है ना, बगेट ऐसा कुछ कहते हैं, they have with this। उनका ब्रेड मतलब ही वो लॉन्ग फ्रेंच ब्रेड जो होता है, इसके साथ खाते हैं। मैं तो रोटी के साथ रैन को देने वाली हूँ। जैसे कि हम थे ना ब्रिटिश रूल के अंडर, दे वर ऑल्सो अंडर द फ्रेंच रूल। इसके लिए उनका खाने का काफ़ी हद तक स्टाइल भी फ्रेंच जैसा है और इसीलिए दे स्पीक द सेकेंड लैंग्वेज इज फ्रेंच फॉर देम। मैं तो प्लेटिंग नहीं कर रही हूँ, मैं इसीलिए इसी से आपको दिखा रही हूँ क्योंकि सिर्फ खाने से पहले मैं प्लेट में सबको सर्व कर दूंगी, बस हो जाएगा। मैं और राजू तो सिर्फ आज यही खाएंगे, ब्रेड रोटी कुछ नहीं लेंगे। रान को रोटी बना दूंगी मैं। आई होप यू लाइक दिस सिंपल रेसिपी। शक्शुका तो बना ली, इजी वाली डिनर। साथ में मिल प्रेप चल रही है, उधर रिच गोट काट के रखी हो और ग्रिल वेजीज बन रही है। और राजीव को किसी भी तरह मैंने सोफे से हिलाया है, वो कद्दू कट के देगा। किचन में थोड़ा साउंड ज़्यादा है क्योंकि एक तरफ वेजीज ग्रिल हो रही है ना एयर फ्रायर में और एक तरफ डिशवॉशर भी रन हो रहा है। आप लोग को तो पता ही होगा कि मैं वीकेंड्स में ऐसे वेजीज को ये करके रख देती। वेजीज तो कट करके रख दी और साथ में मिल प्रेप के हिसाब से ग्रिल वेजिटेबल्स भी बन के रेडी। शाम की चाय, इसी के साथ आज मैं एंड करती हूँ ब्लॉग। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में। आपको अगर